कृष्ण कृष्ण हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओम भगवते સંતો એમની જગ્યાએ બિરાજી જાય પછી આપણે સૌ પણ બેસી જઈશું. આભાર સૌનો. ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं પ્રતીક્ષાબેન આપ પણ ઉપર આવો. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं શાસ્ત્રાર્થ પ્રમાણે દીવાનો પ્રકાશ જ્ઞાન, સુખ, સમૃદ્ધિ, ઉર્જા, અર્ઘ્ય અને હકારાત્મકતાનું પ્રતીક છે. દીપ પ્રાગટ્ય માટે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને પધારવા નમ્ર વિનંતી અને નિમંત્રણ. કહેવાય છે કે મંત્રોના ઉચ્ચારણ માત્રથી એ કરનારના શરીરમાં જ નહીં પણ સમગ્ર વાતાવરણમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. ઓમ નામના એકાક્ષરી મંત્રની પ્રાકૃતિક ગુંજ તો આ સંસાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો એ પહેલાંથી જ થઈ ગઈ હતી. એટલે તો એને બ્રહ્માંડનો અવાજ કહેવાય છે. દરેક મંત્રની પોતપોતાની આગવી શક્તિ છે. મંત્ર જાપથી શારીરિક ક્ષમતા મળે છે. મન શાંત અને સ્થિર બને છે. વિનોદભાઈના જન્મદિવસને નિમિત્ત બનાવીને થઈ રહેલો આજનો આ કાર્યક્રમ આપણે શાંત ચિત્તે સ્થિર મને માણવાનો છે. એટલે મંત્રોચ્ચાર કરીને સૌની ઉર્જા જાગૃત કરવા માટે ઋષિકુમારોને આમંત્રણ આપું છું. આદૌ યજુર્વેદ પાઠક્રમઃ હરિ ઓમ પૂનાન્દો મહાદેવજાના પૂનાન્દો મનસા ધિયા પૂનાન્દો વિષવા ભૂતાની જાતા વેદા પુનીહિમા જથે માં ભાચાંગલ્યાણીમાં વદાનિ જનેભ્યઃ બ્રહ્મરાજન્યાભ્યાગુશૂદ્રા યચાર્જાય ચ સવાય ચારણાય ચ પ્રિયો દેવાનાં દક્ષિણાयै દાતુર્યા ભૂયા સમયં મે કામઃ સમૃદ્ધ્યતા મુપમાદો. અમારા ખૂબ માનીતા અને જાણીતા અતિથિ છો, પણ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નામના મેળવીને જીવનમાં જેઓ આપણાથી આગળ ગયા છે એવા વિશેષ અતિથિઓનું સ્વાગત કરતા અમે બંને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. સૌથી પહેલાં સ્વાગત કરીશું શ્રી પ્રીતમ મુનિજીનું.
ગુરુનું સ્થાન કેવું? તો કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કોકુ લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દીનો દિખાય. તો એક સરસ મજાની પંક્તિઓ છે કે ભાગ્ય બડે સદગુરુ મેં પાયો, ભાગ્ય બડે સદગુરુ મેં પાયો, મન કી દુબદા दूर समाई, मन की दुग्धा दूर न साई, भाग्य बड़े सदगुरु में पायो. શ્રી પ્રીતમ મુનિજીનું પોતાના પ્રેમના પ્રતિકરૂપ પુષ્પગુચ્છ અને શાલથી સ્વાગત કરશે શ્રી વિનોદભાઈ પંડ્યા અને શ્રી પ્રતીક્ષાબેન પંડ્યા. પ્રીતમ મુનિ પૂજ્ય ગુરુજી, સનાતન સંસ્કૃતિના પ્રખર પ્રચારક શ્રી પ્રીતમ મુનિ કાયાવરોહણ ખાતે આવેલ લકુલિશ ધામના સ્થાપક છે. આપણે તાળીઓ પાડવાનું ચાલુ રાખીશું. બ્રહ્મજ્ઞાન રાજર્ષિ મુનિના શિષ્ય છે. ભારતમાં સમગ્ર વિશ્વમાં સનાતન શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિ માટે સતત કાર્યરત શ્રી પ્રીતમ મુનિજીને નમસ્કાર. શ્રી ભાગવત ઋષિજીનું સ્વાગત કરશે પ્રશાંતભાઈ પંડ્યા. આશીષભાઈ પંડ્યા અને મિત્તલબેન પંડ્યા. સોલા સ્થિત ભાગવત વિદ્યાપીઠના સ્થાપક પૂજ્ય દાદાશ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીના પૌત્ર ભાગવત ઋષિજી ભાગવત વિદ્યાપીઠના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી પર છે. આપણે એનું સ્વાગત કરી. શ્રી કૌશિકભાઈ મહેતા, તેઓ શિક્ષણવિદ છે, વિદ્યાવાચક છે, ડોક્ટરેટ છે, શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદના માજી ચેરમેન છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અગ્રણી અને સનાતન સંસ્કૃતિના પ્રખર અભ્યાસી અને પ્રચારક ડૉક્ટર શ્રી કૌશિકભાઈ મહેતાનું સ્વાગત કરશે પ્રશાંતભાઈ પંડ્યા અને બીનાબેન પંડ્યા. એક આગળ લઈ લેવાનું ને, પેલા કેન્સલ થાય છે. જે ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ તૈયાર કરવામાં આવી છે 10 મિનિટની, તો આપણે શાંતિથી જ બેઠા છીએ, તો નજર આપણે સ્ક્રીન ઉપર રાખીશું અને પ્રસ્તુત કરીએ એક સરસ મજાનો વિડીયો આશ્રમ રિલેટેડ. આપ સૌ જાણતા જ હશો કે વિનેતભાઈ આશ્રમ સાથે જોડાયેલા છે. જય ભગવાન. લકુલિશ યોગાશ્રમ અરવલ્લી, મુકામ કંભરોડા, તાલુકા મેઘરજ,
જિલ્લા અરવલ્લીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સૌ આત્મીયજનોને પ્રણામ. હું વિનોદભાઈ પંડ્યા, લકુલિશ યોગાશ્રમ અરવલ્લી સંસ્થાનો પ્રમુખ છું. હું 2015માં મારી સુઝલોન એનર્જીની જોબમાંથી રિટાયર થઈને 2016માં પ્રીતમ મુનિજીને મળવાનું થયું અને એમના આદર્શોથી આકર્ષાઈને તેમની સંસ્થા સાથે જોડાયો. 2016થી 2018 સુધી કાયાવરણ સંસ્થા સાથે વિવિધ કામોમાં સંકળાયેલો હોય, જ્યારે અરવલ્લીનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની વાત આવી ત્યારે ગુરુજીએ એ જવાબદારી મને સોંપી. આ ઈશ્વર નિર્મિત કામ કરવામાં હું નિમિત્ત માત્ર બન્યો, તેનો મને ખૂબ આનંદ છે. અમારી માતૃ સંસ્થા લકુલેશ સનાતન પ્રબોધન સંસ્કૃતિ અભિયાન કાયાવરણ ખાતે આવેલી છે. કાયાવરણ ગુજરાતનું અને પશ્ચિમ ભારતનું એક અગ્રગણ્ય તીર્થક્ષેત્ર છે. ભગવાન લકુલિશજીના આદેશથી ગુરુ શ્રી પ્રીતમ મુનિજીએ વિશ્વમાં સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવા માટે એક અભિયાન શરૂ કર્યું અને 2010માં કાયાવરણ ખાતે સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રબોધન અભિયાનની સ્થાપના કરી. તેમના સંસ્કૃતિના પ્રચાર પ્રસારના ભાગરૂપે અરવલ્લી જિલ્લામાં આ લકુલિશ યોગાશ્રમ અરવલ્લી ટ્રસ્ટની સ્થાપના ઈસવીસન 2017માં કરવામાં આવી હતી. 2/3/2020ના રોજ અહીંનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. કંભરોડા ગામના ચૌહાણ પરિવારે 30 ગુંઠા જમીન આશ્રમ માટે દાનમાં આપેલી અને તે ઉપર ભૂમિપૂજન કર્યું. 2022થી આશ્રમનું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું, જે 15/12/2023ના રોજ આશ્રમનું કામકાજ પૂર્ણ થતાં આશ્રમ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. વચ્ચે તે દરમિયાન બાકીના વિવિધ પ્રકલ્પો જેવા કે મંદિર, યજ્ઞશાળા, ગૌશાળા, મૌન કુટીર વગેરે પ્રકલ્પોનું ભૂમિપૂજન 2/9/23ના રોજ કરેલું અને શિવાલય માટેનું શિલાપૂજન 14/4/2024ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. શિવાલયનું બાંધકામ અત્યારે ફાઉન્ડેશન ચાલે અને આગામી 1-2 વર્ષમાં પૂરા થશે. હાલમાં અતિથિ ગૃહમાં 5 રૂમો બનાવેલા છે, સાથે ભોજન કક્ષ, રસોઈ કક્ષ અને ભંડાર રૂમ એમ 3 રૂમો છે. સાથે આશ્રમનું ઓફિસ કાર્યાલય અને લકુલિશ ચિકિત્સાલય, જે આજુબાજુના વિસ્તારને, આ વધારે કરીને મુખ્યત્વે ટ્રાઇબલ વિસ્તાર હોય, પછાત વિસ્તાર હોય, લોકોની સુખાકારી માટે અહીંયા લકુલિશ ચિકિત્સાલય 31/3/2024ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં દર રવિવારે બપોરે 12થી 2 નિષ્ણાત ડૉક્ટરો દ્વારા મફત નિદાન કરવામાં આવે છે, તેમજ આશ્રમમાંથી સૌ લોકોને મફત દવા પૂરી પાડવામાં આવે છે. દર રવિવારે આશરે 50થી વધુ દર્દીઓ આ સેવાનો લાભ લે છે. આશ્રમની હાલની પ્રવૃત્તિમાં રોજ સવારે અહીં રહેતા સંત સ્વામી પ્રભુનંદજી દ્વારા યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. શાંતિપુરા ગામ અને કંભોરડા ગામના દરેક પરિવારોને એની જાણ કરેલી છે અને 30 દિવસ દરેક જુદા જુદા પરિવારમાંથી સભ્યો અહીંયા યજ્ઞ કરવા આવે છે. રોજ સવારે 9થી 10 અહીંયા યજ્ઞ થાય છે. સવાર સાંજ મંત્રોચ્ચાર, ધૂન, સ્તુતિ, ભજન, આરતી વગેરે કરવામાં આવે છે. દર શનિવારે સાંજે અહીંયા સુંદરકાંડનો પાઠ, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરી પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. દર 11 ગામની બહેનો અહીં આવીને સાંજે કીર્તન કરે છે. અવારનવાર સંત દ્વારા આજુબાજુના ગામની શાળાઓમાં જઈને યોગ શિબિર કરવામાં આવે છે, બાળકોને સંસ્કાર સિંચન કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે આજુબાજુના શાળાઓની શિબિર પણ આપણા આશ્રમમાં કરવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે કરીને આપણો આશય કુમળા વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિનું સિંચન કરવા માટેના હોય, વધારે પડતી અમે વિદ્યાર્થીઓ પર ફોકસ રાખીએ છીએ. ચાલુ વર્ષે જ હમણાં જ ગયા અઠવાડિયે આજુબાજુની 5 શાળા, કમરોડા, શાંતિપુરા કંપા, સિસોદરા, ઇપલોડા અને પિસાલની પ્રાથમિક શાળાઓના આશરે 400થી વધારે વિદ્યાર્થીઓને આશ્રમ તરફથી નોટબુકોનું મફત વિતરણ કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં આશ્રમમાં 5 અતિથિ ગૃહના રૂમો છે. ભવિષ્યમાં પહેલો અને બીજો માળમાં બીજા 10 રૂમો ઉમેરી કુલ 15 રૂમોની સુવિધા પૂરી પાડવાનો પ્લાનિંગ છે.
દરેક રૂમ એટેચ સંડાસ બાથરૂમ સાથે રહેવાની ખૂબ સારા વાતાવરણમાં રહીને પ્રભુ સેવા કરવાનો દરેકને વિકલ્પ મળે માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભવિષ્યમાં અહીંયા આશ્રમ રોડ ટચ હોય, ઠંડા પાણીની પરબ, પશુ પંખી માટેનો હવાડો, પક્ષીઘર વગેરે કરવાનું આયોજન છે. લકુલિશ યોગાશ્રમના બાંધકામમાં અને સંચાલનમાં સૌથી મોટો સિંહ ફાળો હોય કે બાંધકામનો સૌથી વધારે યશ જો આપવાનો હોય તો એ વિક્રમસિંહ ચૌહાણને ફાળે જાય છે કે જેઓ છેલ્લા 4 વર્ષથી તન મન ધનથી આ આશ્રમને ઊભો કરવામાં પૂરો પરસેવો પાડી રહ્યા છે અને આશ્રમના સંચાલનમાં રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. તેવો જ બીજો સારો ફાળો સુરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ કે જેઓ સંસ્થાના સચિવ છે અને ખૂબ સારી કામગીરી બજાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે ગામના શ્રી લાલસિંહજી ચૌહાણ, શૈલેન્દ્રસિંહજી ચૌહાણ અને ઇન્દ્રસિંહજી વગેરે ગામ લોકોએ શાંતિપુરાના શ્રી મગનભાઈ પટેલ, શ્રી બાબુભાઈ પટેલ, શ્રી અમરીશભાઈ, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, શ્રી અમૃતભાઈ પટેલ, શ્રી વિજેશકુમાર પંડ્યા, મેઘરજના શ્રી ભીખાજી ઠાકોર, શ્રી NT ઉપાધ્યાય, હીરાજી ડામોર વગેરેનો ખૂબ સારો સહયોગ સાંપડી રહ્યો છે અને મળતો રહેશે. આશ્રમમાં જે ભોજનશાળા ચાલે છે તેમાં સવાર સાંજ ભોજનના સમયે અહીં રહેતા સંતો, આવનાર મુલાકાતીઓ તમામને નિઃશુલ્ક ભોજન પ્રસાદ પીરસવામાં આવે છે. ભોજન પ્રસાદી માટે આજુબાજુના અનેક ગામો તરફથી ખૂબ સારો સહકાર મળ્યો છે અને સારું એવું અન્નદાન મળેલું છે. તદુપરાંત આપણા પરિવારના સ્નેહીજનોની જન્મ તારીખ, લગ્ન તારીખ અથવા પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રૂપિયા 11,000 આપીને કાયમી તિથિદાન નોંધાવી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં આપણને એવા આશરે 55 કાયમી તિથિદાન મળેલા છે અને તે તિથિદાનની રકમ ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી તેના વ્યાજમાંથી દર વર્ષે નિયમિત તિથિએ લોકોને ભોજન પ્રસાદ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી જે કંઈ કામ થયું છે તે આપણા સમગ્ર પ્રોજેક્ટના આશરે 20% કામ થયેલું છે. હજુ ઘણા કામો કરવાના બાકી છે. આશરે 2.5 કરોડથી વધુ રકમના પ્રોજેક્ટ આપણે પૂરા કરવાના છે અને આપ સૌના સહયોગથી પૂરા થશે તેને મને ખાતરી છે. સંસ્થાને આપેલ દાન ઇન્કમટેક્સની કલમ 80G મુજબ કરવેરા મુક્ત છે, માટે આપ સૌનો સહકારની અપેક્ષા છે. ઓમ જય ભગવાન. સેવા પરમો ધર્મ પૂજ્ય પિતાશ્રીનો આ જીવન મંત્ર હતો અને મેં મારા જીવનમાં ઉતારવાનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. શક્ય તેટલી નાની મોટી સમાજ સેવા કરવાનો મેં પ્રયત્ન માત્ર કર્યો છે. ધનના 3 માર્ગ દાન, ભોગ અને નાશ, આ મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીનો વિચાર હું ડગલે ને પગલે મારા જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારામાં જો કોઈ ગુણો હોય તો મને ખબર નથી, તે ઈશ્વર નિર્મિત છે, પણ દુર્ગુણો મારા પોતાના છે. સમાજ સેવા, ધર્મ સેવા સાથે જીવનનો સદુપયોગ કરવાનો એક પ્રયત્ન માત્ર કરું છું અને આપ સૌના સહકાર સાંભળ્યો છે અને મળતો રહેશે તેની મને શ્રદ્ધા છે. ગીતામાં અર્જુનની સહાય માટે એક કૃષ્ણ હતા, આજે મારી સહાયમાં આપ સૌ કૃષ્ણ રૂપે અહીં આવ્યા છો. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા મારા થકી સદકાર્યની પ્રેરણા અને શક્તિ આપતા રહે અને આપનો અવિરત પ્રેમ પ્રવાસ જળવાઈ રહે તેવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. આપ સૌની સુખાકારી માટે મંગલ કામના. ઓમ અસ્તુ. હવે જેને સાંભળવા માટે આપણે અને વિનોદભાઈ જાતે ઉત્સુક છે એવા આપણે પ્રીતમ મુનિજીને આપણે વિનંતી કરીશું કે તેઓ આપણને ઉદ્બોધિત કરશે. માન્ય શ્રી પ્રીતમ મુનિજી. એક ખાસ સૂચના આપી દઈએ કે કેટલાક મહેમાનો એવા પણ છે કે જેમની ફ્લાઇટ પણ થોડાક સમય પછી અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉપડવાની છે, એટલે થોડાક જલ્દીમાં પણ છે. પ્રીતમ મુનિનું પ્રવચન પતશે પછી એક કર્ણાટકથી સ્પેશિયલ જે ટીમ આવી છે એમનું સ્વાગત કરવા માગે છે. આપણે એમને 2 મિનિટ આપીશું અને
પહેલાં આપણે સાંભળીએ. એક ખાસ વિનંતી છે કે જેમના પણ મોબાઈલ ચાલુ છે ને એ પ્રીતમ મુનિ જ્યાં સુધી પ્રવચન ચાલે ત્યાં સુધી સ્વિચ ઓફ રાખે એવી એમની અને પરિવારની વિનંતી છે, તો એને આપ ગ્રાહ્ય રાખશો. ओम. सभी 2 मिनट के लिए सीधे टटार बैठिए. हम सब साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे. ओम. सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान. आज हम सब यहाँ गुजरात राज्य के अहमदाबाद में आत्मीय श्री विनोद भाई पंड्या के जन्मदिन प्रसंग पर इकट्ठे हुए हैं. मिलने का कारण जो भी हो, किंतु जिसमें अच्छा हो जाए, धर्म हो जाए, सत्संग हो जाए, भक्ति हो जाए, तो वह सब कारण अच्छे ही है. तो आज हम ऐसे प्रसंग पर इकट्ठे हुए हैं. मैं प्रथम आपको कुछ धर्म संस्कृति की बातें कहूँगा. हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों ने हमें समझाया कि पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है. पशु 2 कर्म करता है, अर्थ और काम. अर्थ यानी जीवन जीने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना, और काम यानी कामना पूर्ति. तो पशु पक्षी ये अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं. वो भी पक्षी घोंसला बनाते हैं, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, अपना पेट भरते हैं, रक्षा करते हैं और पारिवारिक जीवन भी जीते हैं. और पशु पक्षी से मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि वो धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है. यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कुछ न किया जाए, दोनों नहीं तो कम से कम धर्म पुरुषार्थ के लिए भी कुछ न किया जाए, तो शरीर तो मनुष्य का है किंतु जीवन मात्र पशु पक्षी जैसा हो गया. अब हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन का कितना हिस्सा पशु पक्षी जैसा जी लेते हैं और कितने हिस्से में मनुष्य का जीवन जीते हैं. हमारा जीवन का जितना हिस्सा सिर्फ और अर्थ और काम के लिए बीत रहा है, तो इतना हिस्सा तो हमने सिर्फ पशु पक्षियों की भांति ही बिताया. और जितने हिस्से में हमने धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कुछ प्रयत्न किया, वह हमारा मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है. शंकराचार्य जी ने कहा संसार में 3 दुर्लभ है, मानव जन्म, मुमुक्षत्व और संत समागम. मानव जन्म, इस संसार में ऐसा नहीं देखने मिलता है कि कभी कुत्ते इकट्ठे होकर धर्म चर्चा कर रहे हो या कौवे ने इकट्ठा होकर धर्म सत्संग रखा हुआ है. मनुष्य में वह है. इसीलिए मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, शंकराचार्य जी ने कहा. और हम सब सौभाग्य वाले हैं कि हमें वो मौका मिला हुआ है. इतनी इस सृष्टि में अनेकों प्रकार के जीवों में, हम शरीरधारियों में हम मनुष्य बने हुए हैं. तो हमने तीसरा हिस्से का तो काम सफलता से पार कर लिया. अब दूसरा कहा मुमुक्षत्व. मुमुक्षत्व क्या है? हमारे उपनिषदों ने समझाया कि परमात्मा, आत्मा, मोक्ष और बंधन, इसके बारे में जो समझाया
उसके लिए तड़प पैदा होना कि मैं मनुष्य बना, जीवन का श्रेष्ठ कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इस संसार में मनुष्य बना हूं तो बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मैं क्या करूं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से बाहर निकल पाऊं। नहीं तो क्या सिर्फ यही करूंगा कि 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल फिर शरीर छूटेगा, पता नहीं दोबारा मनुष्य बनेंगे क्या और कोई जगह पोस्टिंग हो जाएगा। कभी कार में बैठने वाला कभी कार के नीचे बैठना पड़ता है। समझ सकते हो, ऐसी बात है कि जो कभी कार में बैठकर घूमता है, यदि मनुष्य का शरीर नहीं मिला और ऐसा कोई शरीर मिल गया कि जो कार के नीचे बैठता है, तो हमें प्रयत्न करना है, हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। मुमुक्षत्व यानी वह प्यास जगे, वह तड़प जगे, वह इच्छाएं पैदा हो कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं और कहां पर कौन से स्टेटस में हूं, वो समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको उपनिषद। ईस कैन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य एतरे तेतरीय श्वेताश्वेत छांदोग्य बृहदारण्यक सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा भगवद गीता, ये सभी शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा। किंतु वर्तमान की स्थिति क्या है, घर में 10 लाख की कार हो, 50,000 रुपया का लाख रुपए का टीवी हो, किंतु 9 उपनिषद नहीं होंगे। दुनिया भर का नॉलेज होगा, कई सब्जेक्ट में पीएचडी होगा, किंतु यदि पूछा जाए कि क्या मनुष्य जीवन के रहस्य को जानने वाले 6 दर्शन पढ़े हुए हैं, जिसको पढ़ने में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है प्राथमिक बार पढ़ने में। किंतु ज्यादातर की स्थिति ये होती है, हम हिंदू है, सनातन धर्म को मानते हैं, या तो हम मनुष्यत्व को जानना चाहते हैं, हम इस संसार के सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु हमारे पास 2-2.5 घंटे का टाइम नहीं होता है। तो आज आप सबको मैं विशेष इसके लिए प्रेरित करूंगा कि आप प्रयत्न कीजिए, आपके घर में 9 उपनिषद, 6 दर्शन शास्त्र और भगवद गीता होने ही चाहिए। वेद हो बहुत अच्छी बात है, किंतु ये 9 उपनिषद, भगवद गीता और 6 दर्शन शास्त्र और उसका अध्ययन होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं मानना चाहिए बहुत कठिन है, जब पढ़ाई नहीं है तो फिर कठिन कैसे मान ले। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, बहुत कुछ तो सरलता से पता चलने वाला है, बाकी थोड़ा शेष रहा हो, बार बार पढ़ोगे तो वो भी पता चलेगा। तो धर्म पुरुषार्थ, हमारे शास्त्रों ने धर्म किसे कहा, कौन से कर्म करे तो धर्म कर्म, जो कर्म करने से आपका कल्याण है, सभी का कल्याण है, किसी का अहित नहीं है, पशु पक्षी वनस्पति का कल्याण है, प्रकृति की रक्षा होती है, वो सब कर्म धर्म कर्म है। और जिस कर्मों के द्वारा आप औरों का अहित करते हो, पशु पक्षी जीव सृष्टि का अहित करते हो, प्रकृति का अहित करते हो, वह सब अधर्म कर्म है। हम प्रयत्न करें, हम अपने जीवन में धर्म कर्म करें, अधर्म कर्म न करें। एक मटके में जल भरना हो, किंतु मटके में छेद हो तो कितना भी जल डालते रहेंगे, मटका नहीं भरेगा। प्रयत्न करें कि अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वयं खोजे। अपना कल्याण करने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपना कल्याण कर सकता है, अन्यथा अपना पतन कर सकता है। हमें स्वयं अपनी कमियों को खोजना पड़ेगा। उम्र बीत गई संसार को देखते हुए और कंपटीशन करते हुए। ज्यादातर हम सुख की व्याख्या किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, हम जिन लोगों को जानते हैं वह लोग जो सुविधाओं में जीते हैं, ऐसी सुविधा में मैं जी रहा हूं या तो उनसे अच्छी सुविधाओं में जी रहा हूं, यानी सुखी हूं। नहीं तो चाणक्य एक झोपड़ी में भी सुखी था। सुखी होने की जो हम समझ है वो हो सकता है कि हम भौतिक व्यवस्थाओं से हम अपने आप को सुखी मानते हैं, किंतु 3 प्रकार के विज्ञान हमारे शास्त्रों ने कहा, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान मात्र सुख सुविधा दे सकता है, शांति कभी नहीं। इसलिए एयर कंडीशनर रूम में बैठा हुआ व्यक्ति आइसक्रीम खाते खाते भी परेशान हो सकता है। और मनोविज्ञान शांति देता है, मनोविज्ञान सिखाता है कि कौन सी परिस्थिति में आप उलझ जाते हो, उसको समझो और उसके कारणों को खोजो और दोबारा ऐसी परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करो। और कौन सी परिस्थितियों में आप हर्ष में, आवेग में आ जाते हो, और कभी कभार हर्ष में भी हम धर्म भूल जाते हैं। तो मनोविज्ञान सिखाता है अनुकूल और प्रतिकूल, सम्मान और अपमान, सभी परिस्थितियों में समान रहना। भगवद गीता के 12वें अध्याय का 13वें से 20वां नंबर का श्लोक पढ़ो, पता चलेगा कि आप कौन से लेवल में हो, कौन सी परिस्थिति में भटक जाते हो। तो मनोविज्ञान शांति देता है, किंतु मनोविज्ञान के साथ सुख सुविधा की अपेक्षाओं को मत जोड़ो। और इससे भी ऊपर है सुपीरियर साइंस, अध्यात्म विज्ञान, जहां भौतिक विज्ञान का अंत आ जाता है। मनोविज्ञान की गुत्थियां भी जहां पर सुलझाना शांत हो जाता है, वहां पर होता है अध्यात्म विज्ञान। जैसे हमारे यहां द्वैत है, देव और दानव, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ईश्वर और अनिश्वर शब्द नहीं है, आनंद का विरोधी नहीं है, परमात्मा का कोई विरोधी नहीं है। यदि हम कहने लगे तो कह सकते हैं
किंतु जिसका दूसरा कोई रूप नहीं है, जो एक है। और जहां पर पहुंचने के बाद फिर दूसरा कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न नफरत रहती है। ऐसी जो स्थिति कही गई उसको हमारे शास्त्रों ने कहा ज्ञान की उच्चतम भूमिका। और अध्यात्म उसी दिशा में ले चलता है। और अध्यात्म प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? धर्म के लिए आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, डाकोर जाओ, अंबाजी जाओ, यज्ञ करो, पूजन करो। अध्यात्म के लिए कहां जाना है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप में डुबकी लगाना है, अपनी कमियों को खोजना है, कमियों को दूर करना है और धीरे धीरे उस स्थिति पर जाना है कि न कुछ पाने की कामना, न कुछ गंवाने का डर, उस स्थिति की ओर जाना है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा। किंतु ज्यादातर हम क्या करते हैं? जिंदगी भर उसी दिशा में दौड़ते हैं कि क्या पाया है और अब क्या पाना है, क्या पाया है, क्या पाना है, अभी क्या बाकी रह गया, उसने मेरा बुरा किया था देख लूंगा और मेरे जैसा कोई नहीं। इसी चक्कर में हम अपनी जिंदगी, मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन गवा देते हैं। तो प्रयत्न करें कि धर्म, कर्म और मोक्ष यानी अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते चले। धर्म की कुछ बातें कहता हूं समयोचित थोड़ी क्षणों में। शास्त्र अभ्यास जरूर करे। धर्म कोई सिखाए अच्छी बात है, अनुभवियों से, ज्ञानवानों से धर्म सीखना चाहिए। किंतु कुछ ऐसा भी तो हो कि आपको सिखाया जा रहा है वो सही है कि गलत है, वो जानने के लिए उपनिषद, दर्शन शास्त्र, भगवद गीता शास्त्रों का अभ्यास करो। दूसरा काम, यज्ञ जरूर किया करो। प्रकृति की रक्षा के लिए, कल्याणकारी जीवन के लिए, सभी के, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, देव शक्तियों की पुष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए। वर्तमान में कई बार ऐसी स्थिति होती है, कईयों को पूछे कि यज्ञ कब किया था, तो शादी हुई थी तभी, या तो गुरु प्रवेश किया था तभी। किंतु हमारा दायित्व है कि संसार सुखरूप रहे, कल्याणकारी रहे, देव शक्तियां बलवान रहे और हमारा अपना भी वर्तमान जन्म में और आने वाले जन्म में कल्याण हो। यज्ञ किया करो, श्रेष्ठ कर्म है। हमारे शास्त्रों ने कहा यज्ञ करो और योग करो। जिस जिस देव में मानते हो मंत्र जप किया करो। मंत्र जपम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति अवेद प्रकाशा। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन की रक्षा करता है मंत्र। देव शक्तियों, देवम भूतवा देव में जेत, देव की आराधना करते करते अपने में देवत्व प्रगटाओ। और साथ में याद रखो, स्वार्थ और परमार्थ दो पलड़ों में, स्वार्थ का पलड़ू जब बलवान बन जाता है तो अपने आप को जगाओ, परमार्थ बड़ा हो जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन तो कैसा है, बुलबुल की भांति। एक बच्चा अपने दादा के साथ समुद्र के किनारे गया था। उस बच्चे ने दादा से कहा कि दादा मुझे बुलबुला ले जाना है, परपोटो घरे ले जाओ छेक। तो उसके दादा ने कहा बेटा बुलबुला घर पे नहीं ले जा सकते हैं, तो मुझे ले जाना है, बस मुझे ये बुलबुला ही चाहिए। रोने लगा तो उसके दादा ने कहा बेटा तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, बुलबुला ही चाहिए। दादा ने कहा तू कह रहा था मुझे साइकिल लानी है, अभी जाते हो साइकिल लेकर जाते हैं, मुझे बुलबुला चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए। ठीक है, घर पे हम साबुन वाले पानी के अंदर पाइप से फूंक लगाएंगे तो कई बुलबुले बनेंगे, मुझे वो घर पे बनाए हुए बुलबुले नहीं चाहिए, मुझे समुद्र किनारे से एक ही बुलबुला ले जाना है। बोलो है हमारे पास कोई विकल्प? ये तो फूटने के लिए ही बना है। किसी का 5 साल में, किसी का 50 साल में, किसी का 75 में, किसी का 100 साल में, चाहे कुछ भी खिलाओ, चाहे कुछ भी। कोई रेयर केस में ऐसा होता है, गोरक्षनाथ, कोई मिलारेपा, कोई मीराबाई तो कभी कभार पैदा होती है। तो हमें याद रखे इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कुछ ऐसा करके चले कि जब जाए तो जैसे 4 दिन की यात्रा में जाते हैं तो भी बैग भर के जाते हैं, कपड़े रखे, कुछ नाश्ता रखा, दवाई रखी। तो जब इस संसार से, इस शरीर छोड़कर जाना पड़े तो अपने बैग में कुछ। तो मैं अभी यहाँ विनोद भाई के जो आज जन्मदिन के निमित्त सभी इकट्ठे हुए थे, विनोद भाई वही काम शुरू किया उन्होंने। करते तो रहे ही थे वो, किंतु हमारे शास्त्रों ने कहा ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल, गृहस्थ आश्रम 50 साल, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। और अब उन्होंने अपनी यात्रा को वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़ाने लगे। वो अपने जीवन का समय भोग और योग दो में से कहां लगाना है, स्वार्थ में और परमार्थ में से कहां लगाना है। तो उनकी इतनी उम्र, अभी आज 75 स्टार्ट हुआ, इतनी उम्र में भी मैंने कई बार देखा कि कार चला कर यहाँ से बड़ौदा के पास कायावरोहण करीब 150 किलोमीटर यहाँ से आना है। न तो मैं उनको पुष्प का हार कभी पहनाता हूँ और न वहां पर कोई विशेष किसी को सम्मान दिया जाता है। सनातन संस्कृति के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए यहाँ से अरवल्ली आश्रम में जाना आना, फिर वहां के कार्यों के लिए प्रयत्न करना। आप में से कईयों को उनका फोन आया होगा कि अरवल्ली आश्रम में ऐसा दवाखाना का काम है और कुछ मदद कीजिए, कुछ अतिथि निवास में कमरे बन रहे हैं, ये कुछ कार्य है, वहां पर यज्ञशाला बननी है।
क्यों मांगना? उनको ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास हाथ लंबाना पड़े, ऐसा व्यवस्था नहीं है। उनके प्रारब्ध ने, उनके पुरुषार्थ ने और भगवान ने इतना तो दिया हुआ है कि अपनी जिंदगी भर दाल रोटी खाए और मौज मस्ती से जीवन जी सके। फिर भी धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परमार्थ के लिए। और जरूरी नहीं है कि जब किसी के पास हाथ लंबाते हैं सामने वाला अच्छा ही बोलेगा, किंतु फिर भी इसलिए तो मैं आप सबको भी कहता हूं कि मनुष्य जीवन वो तो हाथ में रखी हुई रेत जैसे हाथ झुकता है और रेत बह जाती है, ऐसा ही ये जीवन है। किंतु प्रयत्न करें कि सब अपने जीवन को धर्म के लिए, परमार्थ के लिए उपयोग करें। साथ में ही अंत में हम सब प्रयत्न करें कि अपना जन्मदिन अपनी संस्कृति के अनुसार मनाए। अपनी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किंतु वक्त बदलता चला गया और भारत ने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते रहते फिर उनमें धीरे धीरे क्रिश्चियन संस्कृति में से कुछ न कुछ संस्कार आते चले गए और हम फिर मेणबत्ती जलाकर फिर फूंक लगाने लगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, दिया प्रकटाते थे, प्रकाश हो, उजाला हो, हमारा जीवन प्रकाशित बने, और हम भूल गए और ऐसे प्रभावित होते गए कि अंधेरा हो, बेटे के जीवन में अंधेरा हो, बेटी के जीवन में अंधेरा हो। हम बदले। आज देखो, उनका विनोद भाई का जन्मदिन था, संतों ने, मित्रों ने, आत्मीयजनों ने, पूज्यजनों ने इकट्ठा होकर दिया प्रगटाया। तमसो मां ज्योतिर्गमय के भगवान, उनके जीवन में आप प्रकाश फैलाना, उनका कल्याण करना। तो मैं आप सबको भी कहता हूं, आप सभी प्रयत्न करना। आपके घर में किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे बेटे का हो, बेटी का हो, पोते का हो, पोती का हो, आपका जन्मदिन हो, 2, 5, 10 दिया जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो और सब बड़े बुजुर्ग शुभेच्छा दे, आशीर्वाद दे, और गौ को भोजन कराओ, चींटी को खिलाओ, बड़े बुजुर्ग को खिलाओ, जरूरतमंद की सेवा करो, यज्ञ करो। तो हम सब मिलकर प्रयत्न करें, हमारी संस्कृति का काम करें। अंत में वडोदरा के पास कायावरोहण नाम का तीर्थ स्थान है। भगवान शिव ने वर्तमान कलयुग की शुरुआत में मनुष्य की काया में अवरोहण किया, इसीलिए वह नगर का नाम कायावरोहण पड़ा। जो सतयुग में इच्छापुरी, त्रेता युग में मायापुरी, द्वापर में विश्वामित्र मुनि को जहां पर गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था, तो उनको मेधा शक्ति प्राप्त हुई, मेघा प्राप्त हुई, मेधावती नगरी नाम पड़ गया। विश्वामित्र मुनि की इच्छा थी जैसे पूर्व में काशी है ऐसे एक पश्चिम में काशी की स्थापना करे। उन्होंने एक बड़े शिवलिंग का निर्माण कराया, उल्का पिंड में से शिवलिंग का निर्माण कराकर वहां पर उसकी प्रतिष्ठा की गई। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि मैं यहाँ सदैव सूक्ष्म रूप से विराजमान रहूंगा। फिर विश्वामित्र मुनि ने गंगा मैया का आह्वान किया और गंगा देवी वहां प्रकट होकर रंगावती नाम से बहने लगी। वो नगरी कायावरोहण नगरी, और भगवान ने वहां से सनातन संस्कृति का विश्व में प्रसार हो, योग विद्या का प्रसार हो, इसीलिए 5000 साल पहले 4 शिष्यों को दीक्षा दी थी। गर्ग, कुशिक, मित्र, कारुष्य 4 दिशाओं में भेजकर सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करवाया था, परमार्थ के कार्य करवाए थे। पुनः 1913 में उन्होंने परंपरा शुरू की। गुरुदेव प्रणवानंद जी, कृपालु मुनि जी, राजर्षि मुनि जी ऐसे गुरुओं ने ये कार्य को आगे बढ़ाया। मैं वहाँ से यही कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। कायावरोहण तीर्थ में लकुलिश धाम नाम से हमारा आश्रम है। आश्रम में सभी के लिए रहने की, खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ करीब 104 जितनी गौ माता है, गौओं से गौ माता की सेवा होती है। अभी वहाँ पर हिंदू गुरुकुल की स्थापना की है, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण, साथ में संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण, संभाषण कंपलसरी फर्जियात है, हिंदी का संभाषण फर्जियात है। सभी बच्चों को यज्ञ करना, संध्या कर्म करना, देव पूजन करना, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और भगवद गीता को धीरे धीरे तैयार करना, कंठस्थ करना या समझना, और साथ में राइफल शूटिंग, हॉर्स राइडिंग इत्यादि स्व सुरक्षा का शिक्षण प्राप्त करना, और हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी हुए, जो महापुरुष हुए, उनकी जीवनी को भी समझना। ऐसा वहाँ से प्रयत्न है। आप सबको आमंत्रण है कि हम हमारी संस्कृति, हमारी गुरुकुल परंपरा जो वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, गालव, कनाद, भारद्वाज इत्यादि महापुरुषों ने आगे बढ़ाई थी, हम भी हमारी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाए। और ऐसा ही कार्य हमने भारत में अनेकों जगह आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। गुरुकुल में वहाँ पर कम से कम आर्थिक सहयोग के द्वारा परिवार अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था है। और हमने ये कहा हुआ है कि कोई भी वहाँ पैसों के कारण वापस नहीं जाएगा। वहाँ रहने की ऐसी गुरुकुल, वातानुकूलित गुरुकुल व्यवस्था है, पढ़ने की सब कुछ उत्तम सुविधा हो। फिर भी विद्या प्राप्त करने के लिए आने वाला कोई भी व्यक्ति पैसा कम होने की वजह से वापस न जाना पड़े, ऐसी वहाँ पर हमने आयोजन किया है। ऐसा ही हमारा भारत में अभी 23 संस्थाएं रजिस्टर है, बेंगलोर, दिल्ली, हरिद्वार वगैरह में। और 23 संस्थाएं में से एक हमारी संस्था है लकुलिश योगाश्रम अरवल्ली, गुजरात के अरवल्ली जिले के मालपुर, मेघरज के बीच में, मेघरज तहसील का कंपरोड़ा गांव में।
वहाँ पर अभी 5 कमरे अतिथि निवास बना हुआ है, यज्ञ होता है, देव पूजन होता है, चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था होती है। और वहाँ पर आगे भी गौ सेवा, मंदिर निर्माण, सेवक निवास और अनेकों प्रकार के प्रयोजन वहाँ पर से सिद्ध होने वाले हैं। विनोद भाई पंड्या को उनका प्रमुख का दायित्व और नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे प्रसन्नता है। मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत वर्ष पहले से जब मैंने कार्य शुरू किया तो मुझे ये विश्वास था कि मैं जो कार्य लेकर चल रहा हूँ, तो जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, दिक्कतें तो आती है, परेशानी आती है श्रेष्ठ कार्य में, किंतु पराजय नहीं होता है। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, जो कार्यों के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेंगे। और जब मैंने अरवल्ली का कार्य शुरू किया, हमें कोई भी कार्य करने के लिए 3 शक्तियाँ चाहिए, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और भगवान ने विनोद भाई को वहाँ पर भेज दिया और विनोद भाई आए, परिचय हुआ, वो मूल मालपुर के। तो मैंने उनसे कहा कि विनोद भाई, इस कार्य का आपको नेतृत्व संभालना है, भगवान का कार्य है, भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना है। और मुझे आज प्रसन्नता है कि विनोद भाई ने लकुलिश योगाश्रम अरवल्ली के कार्य को बहुत उत्तम निष्ठापूर्वक और समर्पित भाव से आगे बढ़ाया। व्यक्ति वर्तमान काल में यदि देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की क्या स्थिति होती है, उनको कहा जाए कि 2 दिन के लिए सेवा में आना है तो 2 दिन तो क्या 4 घंटे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय देते हुए कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहाँ आश्रम के लिए जो कार्य करना उचित है श्रेष्ठ आयोजनों को, उसके लिए वो आप सबसे भी अपील करते होंगे। मैं आप सबको भी आमंत्रण देता हूँ, जब भी मौका मिले जरूर वडोदरा के पास कायरोन आश्रम में आइएगा, रुकिएगा, यज्ञ योग में जुड़िएगा। और जब मौका मिले लकुलिश योगाश्रम अरवल्ली मेघरज के कमरोड़ा गांव में, वहाँ पर आप पधारिए, वहाँ पर भी सभी रुकने की व्यवस्थाएं हैं, रुकिए, यज्ञ में जुड़िएगा और श्रेष्ठ कार्यों में सहभागी बनिएगा। अंत में यहाँ पर स्टॉल पर कुछ साहित्य रखा हुआ है, आप वहाँ से साहित्य वगैरह ले सकते हो, पैम्पलेट्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, कि जो भी वो साहित्य ले सकते हो। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि विनोद भाई, प्रतीक्षा बहन और बच्चों को जो इस कार्य के लिए आगे बढ़ाने में ये परिवार प्रयत्नशील है, और विनोद भाई को जब परिवार का भी सहयोग मिलता है तभी विनोद भाई निश्चिंत बनकर और ऊर्जा के साथ लगते हैं। तो इस परिवार पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और भगवान विनोद भाई को भी सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों शक्तियों से ऐसे बलवान बनाए, स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अनुकूलता प्रदान करे, जिससे हम लकुलिश योगाश्रम अरवल्ली का कार्य और सनातन संस्कृति का कार्य उत्तम रीति से आगे बढ़ाए। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण में सहयोगी बनो, सहभागी बनो। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान। बहुत बहुत हम आभारी हैं श्री प्रीतम मुनि जी के। माननीय विनोद भाई पंड्या से मैं निवेदन करूंगा कि स्पेशल कर्नाटक से जो सफ़र हमारे अहमदाबाद तक का तय किया है और जो आए हैं, विनोद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद नीचे आ रहे हैं और वहीं से जिनका सम्मान है वो वहीं से दे सकते हैं। जो 2-3 हमारे पास यादी है, लिस्ट है, जिसमें सदविचार मित्र मंडल, अहमदाबाद इंजीनियरिंग एसोसिएशन, एलडी इंजीनियरिंग 71 की बैच, मालपुर ब्रह्म समाज द्वारा सम्मान पत्र। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो कृपया अपने जो साथ में आए हैं उनके साथ वो हाजिर रहे। विनोद भाई पंड्या खुद नीचे आए इसलिए कि स्वयं हमारे जो यहाँ स्टेज पर जो बैठे हैं वो आमंत्रित मेहमान किसी के पीछे न हो जाए, इसलिए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कीजिएगा।